नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Canto number 1, chapter number 3, entitled as Krishna is the source of all incarnations, and the text number 40. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Shakara Bhagavan Rishi. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. The scripture named Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it is compiled by Srila Vyasadeva, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is the spotless sound representation of all Vedic knowledge and history. Therein are selected histories of great devotees who are in direct contact with the Supreme, with the personality of God. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Sri Krishna and is therefore not different from him. Srimad Bhagavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. Thereby, we can derive the ultimate blessings of the Lord through its careful and patient study. As God is all light, all bliss, and all perfection, so also is Srimad Bhagavatam. We can have all the transcendental light of the Supreme Brahman, Sri Krishna, from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of transparent spiritual master. Lord Chaitanya's private secretary, Srila Swarupa Damodar Goswami, advised all intending visitors who come to see the Lord at Puri to make a study of the Bhagavatam from the person Bhagavatam. The person Bhagavatam is the self-realized bona fide spiritual master, and through him only can one understand the lessons of Bhagavatam in order to receive the desired result. One can derive from the study of the Srimad Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Lord. It carries with it all the transcendental blessings of the Lord Sri Krishna that we can expect from his personal contact. Hare Krishna. So आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम शिक्षा में। इसको हम पूरे ऑगस्ट में। तो आज का जो श्लोका है वो हमें इस पद्धति से बताता है कि जो भगवान के बारे में जितनी भी सारी लीलाएं बताई गई है श्रीमद् भागवतम में एक्सक्लूसिवली भगवान के बारे में बताया है, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के बारे में। वैसे तो व्यासदेव ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और शास्त्रों का कंपाइलेशन किया है, उनको लिखा है, परंतु जब इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी उनको मानसिक शांति नहीं मिल रही थी, उस समय नारद मुनि के निर्देशानुसार श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्रील व्यासदेव कौन है? जो हमने पिछले तीसरे श्लोका में जो भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताया, उस समय उसमें देखा कि जो श्रील व्यासदेव है वो भगवान के लेखक अवतार है, लिटररी इनकार्नेशन। एंड श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने लिखा वो भी भगवान के क्या है? लिटररी इनकार्नेशन। एक लेख्य अवतार है, एक लेखक अवतार है। व्यासदेव जो है वो भगवान के लेखक अवतार है और श्रीमद् भागवतम जो है वो लेख्य अवतार है, मतलब शास्त्र अवतार है भगवान का। और हम जैसे बोलते हैं गुण रूप लीला नाम नाम, ये भगवान का गुण रूप और लीला भगवान से अभिन्न होती है। भगवान का पर्सनल प्रेजेंस, साक्षात रूप में भगवान हमारे सामने जब रहते हैं तब वो जितना शुद्धिकरण वाला एहसास होता है या शुद्धिकरण वाला मोमेंट होता है, शुद्धिकरण वाला पल रहता है, उतना ही श्रीमद् भागवतम
से अगर हम भगवान की लीलाओं का श्रवण और अध्ययन करते हैं वो भी उतना ही हमारे लिए शुद्धिदायक रहता है। तो इसलिए भगवान की लीला भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का लिखा हुआ श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, भगवान का जिन्होंने वो श्रीमद् भागवतम लिखा वो व्यक्ति भी भगवान से अभिन्न है। तो इस पद्धति से एक ही जगह पे भगवान के 3 अवतार हैं। कौन से? व्यासदेव, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई भगवान की सारी लीला। इस पद्धति से 3 इंकारनेशन, 3 अवतार जो है भगवान के वो एक साथ एक जगह पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे बोला है श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का कंपाइलेशन किया, उसकी रचना जो की है। पहला सर्वप्रथम ये स्पॉटलेस है, इसमें का अपना जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके बारे में नहीं लिखा, केवल भगवान के भक्ति योग के बारे में इसमें लिखा गया है करके। और ये जो भक्ति योग है ये वो अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल, ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लेसफुल एंड ऑल परफेक्ट। सर्वप्रथम हमें देखना है जो परपट में श्रील प्रभुपाद एक क्वेश्चन बताते हैं, हमें एक सूचना बताते हैं, वो है कि श्रीमद् भागवतम ये सभी पद्धति से कार्य करेगा, ऑल ब्लिसफुल रहेगा, हमारे लिए ऑल सक्सेसफुल रहेगा, परंतु श्रीमद् भागवतम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द मीडियम ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल मास्टर। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोलते हैं गुरु बनने के लिए क्वालिफिकेशन, पात्रता क्या है? वो पहले भगवान के भक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का अनन्य भक्त है, जिसने भक्ति योग का पालन किया हुआ है और अपने आप को उसमें निछावर कर दिया है, वो व्यक्ति भगवान का जो भक्त बनता है वो गुरु बन सकता है। तो सर्वप्रथम क्वालिफिकेशन जो है कोई भी गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर बनने के लिए वो है भगवान का भक्त बनना। और वो जब भक्त हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम से, मतलब अपना पर्सनल एजेंडा न रखते हुए, जो भी आचार्य गणों ने अपने जीवन में भागवतम भगवत गीता के बारे में चर्चाएं की हुई है, शिक्षाएं दी हुई है, उनको बिना किसी अल्टेरियर मोटिव के, बिना तोड़े और मरोड़े अगर सामने रिप्रेजेंट करता है और लोगों को बताता है तो दैट इज हिज क्वालिफिकेशन। और ऐसा जब वाया मीडिया कोई भी व्यक्ति आता है अगर श्रीमद् भागवतम हमें बताता है तो उसका इफेक्ट कैसा होता है? अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल, इट इज ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लिसफुल एंड ऑल परफेक्ट। डिवोशनल सर्विस इज ऑल ब्लिसफुल। जो कोई भी व्यक्ति डिवोशनल सर्विस भक्ति मार्ग में आता है उसको बाहर जाके आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान अखिल रसामृत है, भगवान रस सागर है। जो कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, उसके जीवन में भय, शोक ये और जो लोभ है वो अपने आप निकल जाता है। केवल भक्ति योग का पालन करने मात्र से ये चीज होती है। और जब हमारे जीवन से शोक, मोह और भय निकल जाएगा, जीवन तो ऑल ब्लिसफुल, परम आनंदी बन जाएगा। तो भक्ति योग का पालन करने वाले व्यक्ति को बाहर जाके किसी भी भौतिक चीज, भौतिक वस्तु या भौतिक परिस्थिति में आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति को भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति में आने के बाद भी तकलीफें आती है, भक्ति में आने के बाद भी उतार चढ़ाव अपने जीवन में आएंगे। भक्ति में आने के बाद जिन भक्तों का संग हमें आनंदमय लगता है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये भक्तिमय संग जो है मेरे जीवन में तकलीफें लेके आ रहा है। तो तकलीफें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमारे जीवन का एक भाग है जिसको यहाँ पे भक्ति में आए, मंदिर में आए, मंदिर में नहीं भी आए तो भी वो आएंगे। परंतु हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी भक्त के जीवन का और भक्ति में तकलीफ देने का साधन हमें नहीं बनना चाहिए। बहुत बार हमें ऐसे लगेगा अरे मैं तो उसके जीवन में तकलीफ नहीं, उसके तो भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसकी भलाई में चाह रहा हूँ,
उसको मुझे भक्ति में आगे बढ़ाना है करके इस पद्धति से मैं आगे जा रहा हूँ करके, परंतु इस भौतिक जगत में परसेप्शन इज अ रियलिटी। मैं भले ही उस व्यक्ति को एनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में सही में वो एनकरेजमेंट हो रही है या उसको वो फोर्स लग रहा है, ये भी हमें हमारे जीवन में उसका आकलन करना चाहिए। भक्ति कभी भी एनकरेजमेंट से चलती है, भक्ति कभी भी फोर्स से नहीं चलेगी। हर एक व्यक्ति जीवन में, हर एक जीवात्मा जो है, भगवान ने उसका कैपेसिटी, उसका भगवान के साथ आदान प्रदान और रस जो है वो अलग अलग पद्धति से बनाए। जो मेरे जीवन में मैं कर सकता हूँ, जिसमें पद्धति से मैं कर सकता हूँ, वो कोई भी व्यक्ति दूसरा जो जीवात्मा है अपने जीवन में उस पद्धति से शायद से ही वो नहीं कर सकता है। परंतु मैंने माय वे इज अ हाईवे, हम इस पद्धति से कभी भी जीवन में चलते नहीं हैं। अगर मैं समझू, रक्षण कृष्णदास समझ के, अरे देखो मैं ब्रह्मचारी बना हूँ, दुनिया का सारा यूथ जो है ब्रह्मचारी बनना चाहिए, नहीं पॉसिबल होगा। और मेरे जितने भी संपर्क में आने वाले जितने भी बच्चे, अगर उनको मैं फोर्स नहीं देखो यही करना पड़ेगा तुम्हें, यही सब कुछ है, ऐसा ही होना चाहिए, they will not feel encouraged, they will feel it as a force, right? तो हमें हमारे जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी चाहिए कि हमें भक्तों को encourage करना चाहिए, ना कि हमें उनको फोर्स करना चाहिए। जिस पद्धति से मैं डिवोशनल सर्विस कर रहा हूँ उसी पद्धति से प्रिंसिपली भक्ति योगा में सब सेम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये प्रिंसिपल, ये तत्व सबके लिए समान है, परंतु वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने की कैपेसिटी हर एक जीवात्मा की अलग रहेगी। कभी कभी किसी व्यक्ति को श्रवणम में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, कभी कभी किसी व्यक्ति को कीर्तनम में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, कभी किसी को हम्बल मिनियल सर्विस में इंटरेस्ट रहेगा, कभी किसी को मैनेजमेंट में रहेगा। हर एक व्यक्ति को उसके स्वभाव अनुसार हमें इंकरेज करना, उसको प्रेरणा देनी है। प्रेरणा देना और जबरदस्ती करना, इनमें बहुत फर्क रहता है। किसी को हम एनकरेज करें, मतलब अगर व्यक्ति जो है, मैं अगर समझना चलूँ रहे कल से पूनम माता जी, राधा शंकर माता जी, सत्यनारायण प्रभु 4:30 बजे मुझे यहाँ पे चाहिए, उन्होंने 16 माला करनी चाहिए, उसके बाद मंगल आरती, जपा बचा हुआ श्रीमद् भागवतम, और उसके बाद हम्बल मिनियल सेवा करके यहाँ से वो 10 बजे जाएंगे। Is it a possible thing? No. They have their own families, they have their own responsibilities. उनके खुद के बच्चे हैं, घर पे पति पत्नी रिश्तेदार आते हैं, इन सब का करना होता है। तो being a brahmachari, for me it might be very possible कि morning 4:30 उठो और फिर उसके बाद जपा करो, 16 माला मंगल आरती से पहले होनी चाहिए। For me it may be very easy, but for somebody else it might not be easy. For somebody, just like suppose our Ashish Agarwal bro, he has his own work to do, बराबर है? तो morning 9 o'clock उनको जाना पड़ता है अगर जॉब पे, तो I cannot say him 7 बजे इधर मुझे एवरीडे मंगल आरती के लिए आना चाहिए करेंगे। It is a force from my side to him. So every devotee has their own capacity. And every devotee has their own level. Being a 22 years in devotional service, कुछ चीजें मेरे लिए बहुत आसान रहेगी। 16 माला करना सुबह उठ के मेरे लिए आसान नहीं रहेगा, 4 नियम पालन करना मेरे लिए आसान रहेगा, श्रीमद् भागवतम का स्टडी करना मेरे लिए आसान रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति 1 या 2 साल से भक्ति में है, शायद से उसके लिए वो चीजें आसान नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं एडमंट हूँ, मैं जिद्दी हूँ, नहीं, अगर इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट में किसी को आना है, ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। People will not come, they will feel discouraged, they will feel it forced, and devotional service is not about force. Devotional service is about encouraging, giving people the best, that this is what you walk, you have this capacity,
you serve in that way. हनुमान जी जब अपन भगवान रामचंद्र सेतु बना रहे थे, वो सेतु बनाते समय हनुमान जी बड़े बड़े जो पहाड़ है उनको तोड़ के लेके आ रहे थे और वो समुद्र में डाल रहे थे, और उसी समय वहां पे एक छोटी सी स्क्विरल थी, गिलहरी, छोटी सी गिलहरी थी, छोटे छोटे पत्थर लेके आती थी और वो डालती थी। भगवान रामचंद्र ने जब हनुमान जी देख के हंसे, रे गिलहरी तुम्हारे छोटे पत्थरों से क्या होगा? हनुमान जी बोले, श्री राम बोले, गिलहरी भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से मेरी सेवा करे। भगवान रामचंद्र उतने ही खुश थे। तो हर एक जीवात्मा जो भी सिंसियर बनने की कोशिश करता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो भक्ति करने की कोशिश करता है। मेरी कैपेसिटी अलग है, किसी और की अलग है। सुदामा की कैपेसिटी भगवान कृष्ण को प्लीज करने की बहुत अलग थी। सुदामा केवल अपने जीवन में भगवान को पोहा देता है, लेकिन भगवान कृष्ण उस पोहे से भी उतने ही खुश थे जितना वो अर्जुन से खुश थे। अर्जुन की कैपेसिटी थी कि महाभारत के युद्ध में लड़ते हुए पूरे के पूरे कौरव डायनेस्टी का क्या करे, वो संहार करके धर्म की स्थापना करे, और अर्जुन ने वो किया। कृष्ण उनसे भी उतने ही खुश थे, बराबर है। भीष्म देव से भी भगवान उतने ही खुश थे, कौरवों के साइड से लड़के भी कृष्ण कॉन्शियस रहना, भगवान उनसे भी उतने ही खुश थे। तो भगवान हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं चलेंगे कि दिस इज व्हाट अ प्रिंसिपल आई हैव बीन गिवन, और इसी प्रिंसिपल, इसी तत्वों के हिसाब से और इसी कैपेसिटी के हिसाब से मेरी सेवा होनी चाहिए। सोचिए, अगर भगवान हमसे एक्सपेक्ट करे कि हम सभी के सभी गोपियों की तरह सेवा करना चालू करें, इज इट आवर कैपेसिटी? द विरह व्हिच गोपीज वर हैविंग फ्रॉम कृष्ण, उस विरह का 0.1% भी अगर हम लेने की कोशिश करेंगे ना, जल के खाक हो जाएंगे आप लोग। That is what the love of Srimati Radharani and Gopis. What to speak of Gopis? अगर यशोदा मैया नंद महाराज भी बनने की कोशिश करेंगे, टेल मी, हम में से कितने लोग हैं जो 10 साल के बाद अपने बच्चे से विरह सहन कर पाएंगे? Yes, none of us. नंद महाराज and यशोदा माई has done that. कितने साल तक भगवान रहे? 10 साल तक। उसके बाद 140 साल तक भगवान उनके पास आए भी नहीं थे। इतना विरह उन्होंने सहन किया हुआ। तो अगर भगवान हमसे कोशिश करे ये चाहने कि तुम में से हर कोई, नंद महाराज, यशोदा माई, देवकी, वसुदेव, क्या हम अपने 6 बच्चे भगवान के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं? अरे व्हाट टू स्पीक ऑफ 6 बच्चे सैक्रिफाइस, मतलब कंस उनको मारना। अगर हम में से भक्त बनने के बाद भी किसी का बच्चा बोल दे कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो हमारा बेटिया है वो तो बराबर है। We can't sacrifice it for Krishna। तो हर एक लेडी अपने जीवन में कभी भी देवकी माई और यशोदा माई नहीं बन सकती है। उतना प्रेम, उतना वात्सल्य हमारे अंदर भगवान के लिए नहीं आ सकता है। वो केवल यशोदा माई और देवकी माई के अंदर आ सकता है। कृष्ण की माता बनना इतना साधारण नहीं है। अगर कृष्ण हमसे आशा करना चालू कर दे कि आप वही करना है जो ये करते हैं करके, हम में से कोई भक्ति नहीं करेगा। आप भी क्या भी छोड़ देंगे हम डिवोशनल सर्विस। तो बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ guru is very highest post. I cannot say anything about it. But we cannot force people. Being a senior or varishtha or in charge of Goregaon West, we cannot expect people that they will do the same thing which I am doing. Everybody has their own capacity, and we have to encourage people according to that capacity. Then those people will feel devotional service as a all blissful, all purified. So Lord Ramachandra encouraged Gilahari, that squirrel. उन्होंने प्रेरणा दी। हनुमान जी की कैपेसिटी के हिसाब से भगवान रामचंद्र ने उनको प्रेरणा दी। नल नील के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से भगवान ने उनको प्रेरणा दी। सुग्रीव के हिसाब से भगवान ने उनको प्रेरणा दी। विभीषण की कैपेसिटी के हिसाब से भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी। और हर एक की कैपेसिटी अलग है। अंगद की कैपेसिटी अलग थी तो हनुमान जी की अलग थी।
जामवंत की अलग थी तो सुग्रीव की अलग थी, बराबर है। यशोदा माई की अलग थी तो गोपियों की कैपेसिटी अलग है, उद्धव की कैपेसिटी अलग है। उद्धव ने कभी फोर्स नहीं किया, नहीं नहीं ये सब विरह भावना वगैरह छोड़ दो, तुम लोग तत्व के हिसाब से चलो, नहीं, वो खुद प्रेरणा प्राप्त किए कि यस इनका कैपेसिटी इस हिसाब से है तो मुझे इसी हिसाब से रहना। उन्होंने खुद से प्रेरणा ली गोपियों से, उद्धव को। तो हमेशा हमारे जीवन में अगर हम प्रचारक भी, हम में से हर एक कोई प्रचारक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो क्लास देगा या जो सेमिनार्स कंडक्ट करेगा वही व्यक्ति प्रचारक बनने वाला। हम में से हर एक व्यक्ति जो तिलक लगा के कंठीमाला धारण करता है वो प्रचारक है। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में है जिससे हम भक्त बनाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को हम भक्त बनाना चाहते हैं। तो हमें ये देखना है, सर्वप्रथम इसका आकलन देखना है कि वो व्यक्ति किस पद्धति से कितना कैपेबल है। ठीक है, गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू ईच एंड एवरी पर्सन। He might have his own psychophysical nature, his own परेशानी, उसका अपने जीवन में उसकी खुद की अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी रहेगा, परंतु वो अगर सही में सिंसियरली भगवान की भक्ति करना चाहता है उन शॉर्टकमिंग्स के बाद भी, तो हमें उसको अप्रिशिएट करके एनकरेज करना है। यस, कंटिन्यू। Some might not be able to chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra even after 8 years in devotional service. There are the people, but that doesn't mean they are not willing to do the devotional service, just not yet the capacity. It's not a cup of tea for them. So we just encourage them कि नहीं कीजिए, देखिए थोड़ा एक माला कीजिए, एटलीस्ट एकादशी के टाइम पे कीजिए, but there should not be force. ऐसे कैसे you are fallen, 8 साल हो गए तुम ये नहीं कर रहे हो, what is the use of your life, tomorrow you might die, what is the use of, then that is a force. Okay, so there might be the cases, those who are not able to follow certain things, even we should अपना आकलन करना चाहिए हम लोगों की। there are certain principles जो हम भी अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पा रहे आज तक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि सारे धर्मों का जो है परित्याग करके केवल मेरे प्रति शरणागत करो। क्या हम कैपेसिटी में है कि सारे धर्मों का त्याग कर सके? मातृधर्म, पितृधर्म, भार्या धर्म, पति धर्म। इवन आफ्टर फॉलोइंग डिवोशनल सर्विस 40 साल 50 साल तक हम अपनी पत्नियों को छोड़ सकते हैं, हम अपने घर को छोड़ सकते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस को छोड़ सकते हैं? नहीं। तो हर एक व्यक्ति का कैपेसिटी होता है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना लिमिटेशन होता है, और कृष्ण उस लिमिटेशन से अपने मर्जी में लिमिटेशंस नहीं रखते। वो सिंसियर हार्ट देखते कि इस लिमिटेशंस के बावजूद भी ये व्यक्ति अगर मेरा डिवोशनल सर्विस करना चाहता है तो आगे की मर्जी करो। उतना का कैपेसिटी क्या था? जीरो था, उसकी लिमिटेशंस क्या थे? अनलिमिटेड लिमिटेशंस थे। उतना आई थी केवल कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तन के ऊपर कालकूट जहर में, परंतु कृष्ण ने केवल भावना देखी। क्या? माता के स्वरूप में आई है, और जब कृष्ण के स्वरूप को देखा तो उनके मन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब ये आया, कितना सुंदर बच्चा है, और उसके वजह से जो ममत्व उनके हृदय में जागृत हो गया, उस ममत्व के वजह से उनके स्तन में से दुग्ध जो है, दूध जो है, वो बाहर कृष्ण ने वो लिया। अब लिटिल बिट ऑफ मिल्क, छोटा सा, कृष्ण ने वो अपने प्राशन कर लिया, परंतु वो राक्षसी थी, तो उस दूध के साथ साथ कालकूट जहर लेते हुए उनका आत्मा भी छीन लिया। परंतु क्योंकि वो माता के स्वरूप में आई थी, कृष्ण ने अपने मर्जी का, अपने कृपा का लिमिटेशंस नहीं दिखाया वहां पे। आध्यात्मिक जगत में उनको माँ धात्री का स्वरूप दे दिया कृष्ण। तो हाँ, धात्री मतलब जो माँ रहती है जन्मदात्री, उसका हेल्प करने वाली नर्स, धात्री मतलब नर्स। एग्जैक्टली। तो कृष्ण ने
अपने कृपा में लिमिटेशंस नहीं दिखाया, कृष्ण ने कृपा पूर्णतः दी। वैसे कि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में दिए हुए कैपेसिटी के हिसाब से ही कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी हिसाब से सेवा होगा, मैं जो बोलूँगा मैं अल्टीमेट है करके इसी हिसाब से सेवा होगा तो भगवान की कृपा होगी, नहीं। हर एक व्यक्ति को अपने कैपेसिटी के हिसाब से सेवा करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं यही मेरा लिमिटेशन है, यही मेरी कैपेसिटी और इसमें ही मैं हमेशा सेवा करता रहूंगा, तो भी वो बहुत गलत बात है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ने भले ही मेरी कैपेसिटी इतनी है, परंतु मैं भगवान की जो भक्ति है वो करने की कोशिश करूंगा, अपने कैपेसिटी से, अपने लिमिटेशन से धीरे धीरे क्यों ना हो मैं ऊपर आने की कोशिश करूंगा, तब भगवान और ज्यादा कृपा करेंगे। नहीं देखो जी मेरे तो इतना ही कैपेसिटी है कि मैं पहले तो रात दोपहर के 12 बजे उठूंगा, फिर उसके बाद मैं पहला चाय पीऊंगा, फिर उसके बाद मैं इच्छा हुई तो नहाऊंगा, फिर थोड़ा 1-2 माला करूंगा, फिर घूमूंगा, फिर उसके बाद मंदिर में जाकर 4 बजे दर्शन करूंगा, शाम को आऊंगा, मस्त बेड पे सोए सोए लेक्चर लगाऊंगा, उतना ही मेरा श्रवण होगा। और ये कितने सालों तक? 8 सालों तक मैं करूंगा, 10 सालों तक मैं करूंगा। नो, दैट इज ऑल्सो डिस्करेज। हर एक व्यक्ति ने अपने हृदय में, हर एक साधक ने ये करना चाहिए कि हाउ आई शुड डू इट बेटर टुमारो। Just like yesterday was Radha Shankar Mataji's birthday, so we were discussing. Those who were not there yesterday, they have missed the very nice, puffy, authenticate South Indian idlis of Sunita Mataji. Hare Krishna. So, I was telling, we were discussing. What is the meaning of birthday? Birthday जो रहता है एक वैष्णव के जीवन में, उसमें उसका रिफ्लेक्शंस क्या होने चाहिए? रिफ्लेक्शंस ये होने चाहिए कि पिछले साल में मैंने भगवान के प्रति अपना जो सरेंडर दिखाया हुआ है, अपनी जो शरणागति दिखाई हुई है, उससे ज्यादा मैं अगले साल में कैसे कर सकती या कर सकता हूँ। तो हर एक भक्त का ये कॉन्टेम्पलेशन जीवन में होना चाहिए हमेशा कि आज का मैंने जो दिन किया है भगवान के प्रति जो शरणागति है, कल मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ, कल मैं और बेटर तरीके से कैसे कर सकती हूँ, कल का दिन, कल का महीना, अगला आने वाला महीना, अगला आने वाला साल जो है मैं और अपने आप को भगवान के प्रति कैसे शरणागत कर सकता हूँ। शरणागति साधक के जीवन में एक रात में आने वाला नहीं है, ठीक है। वो कोई मोबाइल का रिचार्ज नहीं है कि अभी मैंने पासवर्ड डाल के कंपनी को बोल दिया और तुरंत मेरे इसमें डेटा बैलेंस आ गया। इट्स नॉट अ 5G काइंड ऑफ स्पीड, ओके। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम साधक के जीवन में ग्रेजुअली होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, और हमें उतना पेशेंस भी रखना है। जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसके लिए भी हमें पेशेंस रखना है, और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको भी पेशेंस रखना है, लेकिन इतना भी पेशेंस नहीं रखना है कि वो पेशेंट बन जाए भक्ति जीवन, ठीक है। उसमें भी एक इनर कॉन्टेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम बोलते करना चाहिए कि हाउ आई कैन डू इट बेटर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, हाउ कैन आई मेरी कैपेसिटी से मैं बाहर आके अपने आप को भगवान के प्रति और थोड़ा शरणागत करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं है आज मैं 1 माला कर रहा हूँ तो कल के कल मुझे 64, 192 पे जाना है, नहीं। आज 1 कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास कैपेसिटी है, अभी मुझे पता चल गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र 7 मिनट में कैसे ये होता है 1 माला, कल से मैं 2 माला करूँगा, परसों से मैं 4 करूँगा, परसों से मैं 8 करूँगा, जब मैं 16 करूँगा। परंतु इंट्रोस्पेक्ट करके, अपना खुद के ऊपर चिंतन करके, आत्मचिंतन करते हुए
भगवान के प्रति खुद से शरणागति लेना, ये एक साधक का कर्तव्य होता है। बाहर से प्रेरणा आएगी, उस प्रेरणा के हिसाब से हमें कार्य करना है, ठीक है। परंतु अगर मैं साधक हूं तो मुझे ये देखना है कि मैं स्टैग्नेंट नहीं बनना चाहिए। इस भौतिक जगत में पानी भी स्टैग्नेंट हो जाता है ना, तो वो पानी में अलगी बन के वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन पानी अगर फ्लो में रहता है ना, उसमें कभी अलगी नहीं आएगी, वो फ्रेश वाटर रहता है। इसे भौतिक जगत में हम जब भक्ति कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, तो उस समय हम लोगों को स्टैग्नेंट नहीं रहना है हमारे एफर्ट्स में कि देखो भाई अभी 16 माला 4 नियम हो गए, इतना ही है मेरा कैपेसिटी, इसके बाद आगे नहीं जाऊंगा, तो हम स्टैग्नेंट बन गए। तो फिर धीरे धीरे काम करो तो मत्सर जो है अपना जब ये निकालना, सर निकालना चालू कर देंगे, तो वो अलगी जो है षडनर्थस की, वो अपने आप बनना चालू हो जाएगी हमारे हृदय के। इसलिए डिवोशनल सर्विस में जो कृष्ण नाम के सागर है, उनकी तरफ हमारे भक्ति का जो ये है नदी जो है, गंगे वौगम उधनवती, इफ यू सर्च इट आउट, अपने कुंती महारानी प्रेज दिस, गंगे औगम उधनवती। वो श्लोका बताता हूँ आपको। to 41.8, 18 to 43. 18, 1.8, 1.8 point, 18 to 43. 18 to 40. Oh, means you are telling me the Kunti Stuti, na? I'm searching for that particular shloka. त्वयि में अनन्या विषया मते मधुपते सकृत रतिम उद्वती हत्ता गंगे वौगम उदन्वती। 42. हाँ, what is the number of that? 42. 1.8.42. हाँ, त्वयि में अनन्या विषया मते मधुपते सकृत रतिम उद्वहता हत्ता गंगे वौगम उदन्वती। तो भगवान जिस पद्धति से गंगा माता जो है, कितने सारे उनके रास्ते के बीच में डिस्टर्बेंसेस, ऑब्स्टेकल्स और तकलीफें आती है, फिर भी गंगा माता उन सारी तकलीफों को दूर करते हुए एक ही लक्ष्य रखती है कि मुझे जाके सागर में मिलना है। तो उसी पद्धति से भौतिक जगत में भगवान बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस और ऑब्स्टेकल्स और अड़चन आएंगे, लेकिन मेरा जो चित्त है वो हमेशा आपके चरण कमल पे लगना चाहिए। ये जो कुंती महारानी वो भगवान से प्रार्थना करती है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में साधक को केवल एक ही चीज याद रखनी है कि भले ही मेरी कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटी भी कभी कभी मेरी अड़चन बन जाएगी। उस कैपेसिटी को मैं कैसे और बढ़ा सकता हूँ, और आज के जगह कल के दिन में कैसे भगवान के प्रति ज्यादा अपनी शरणागति दिखा सकता हूँ। ये एक साधक का कंटेम्पलेशन और आत्म चिंतन होना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी भक्ति में है लेकिन दूसरों को वो भक्ति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि किस पद्धति से उस व्यक्ति को मैं प्रेरणा दे सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं प्रेरणा दे रहा हूँ करके, परंतु वो प्रेरणा शायद से उस व्यक्ति के लिए फोर्स लग रहा है, शायद से मेरे किसी चीजों से वो आहत भी होता हो रहा होगा। तो मुझे वो आत्मचिंतन करना है कि किस पद्धति से उस व्यक्ति को बिना हर्ट किए, उस व्यक्ति को बिना तकलीफ पहुंचाए, बिना फोर्स किए मैं उस व्यक्ति को भगवान के प्रति और ज्यादा प्रेरणा देने की कोशिश कर सकता हूँ। तो फोर्स करना और प्रेरणा, इंकरेज करना, इसमें हमें डिफरेंस समझ के फिर लोगों को अपने भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए हमेशा। तो ये दोनों साइड से, जो साधक नया आया है उसने इसका कंटेम्पलेशन करना चाहिए कि आज के जगह कल में क्या कर सकता हो, और जो ऑलरेडी भक्ति में लेकिन दूसरों को भक्ति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि मैं उनको प्रेरणा कैसे दूं।
उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में उनको मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे दे सकता हूँ भगवान के प्रति, ये जो प्रचारक है उसका हमेशा कंटेम्पलेशन होना चाहिए। तब जाके जो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ भक्ति योग है वो ऑल ब्लिसफुल, ऑल परफेक्ट हम लोगों को लग सकता है। अन्यथा भक्ति में आने के बाद भी लोग क्या करेंगे, अपने आप को डिस्करेज कंसिडर करेंगे, अपने आप को तकलीफ में देखना शुरू करेंगे। तो ऑल ब्लिसफुल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भक्ति में ऑलरेडी है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है हमारे कम्युनिटी के अंदर, और ये हर एक का कार्य होता है। जो पुराने भक्त हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और जो नए नए भक्त आए हैं उनके ऊपर भी ये कैपेसिटी रहती है, उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं तत्वों के हिसाब से भक्ति को समझ पाऊँ। क्योंकि साधक लेवल पे हम कितना भी रहे, 20, 25, 30 साल क्यों न रहे, अनर्थ थोड़े बहुत रहते हैं, शॉर्टकमिंग थोड़े बहुत रहते हैं। तो हर एक को साथ देते हुए, उस व्यक्ति को समझते हुए अगर हम एक कम्युनिटी, फैमिली के स्पिरिट के हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटा सा कम्युनिटी भी हमेशा हर एक को अपने जीवन में एनकरेजमेंट, प्रेरणा और आनंद देने का काम। इसी के साथ मैं यहाँ पे अल्पविराम लेने की कोशिश करूंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेम।